नमस्कार, दिस इज दिनेश शर्मा और आज के लिए फिजिक्स की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल यूजिंग गॉस थ्योरम। व्हाट इज थिन स्फेरिकल शेल? इस तरह की कोई बॉल, कोई फुटबॉल, वॉलीबॉल, एवरीथिंग इज स्फेरिकल शेल। अंदर से खाली होती है, खोखली होती है, हॉलो होती है, और इसको देखेंगे तो अंदर से खाली है। दिस इज स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज है, मान लीजिए कोई, तो उस चार्ज के कारण ये बन गया चार्ज स्फेरिकल शेल। और एक चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण अब किसी पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही हम इस आर्टिकल में करने वाले हैं। तीन बातें पॉसिबल हैं, या तो पॉइंट पी शेल के बाहर होगा, या शेल के ऊपर, या शेल के अंदर होगा। तो तीनों केस हमें अलग अलग से करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट अस स्टार्ट। तो विल राइट इन इट्स सॉल्यूशन, consider a charged spherical shell. Charged word is very important because the shell is charged. So consider a charged spherical shell whose center is O and whose radius is R, right, capital R, right? And now let sigma is surface charge density. Now what is surface charge density? You know it well. This is charge per unit surface area, right? Where सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यू नो इट वेल। तो ये पहली बात हो गई कि हमारे स्फेरिकल शेल को हमने मान लिया। सेकंड पॉइंट इज सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड पॉइंट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। व्हाई रेडियली आउटवर्ड? बिकॉज द शेल इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्जेस and electric field lines from the positive charge always radiate outward. So this is electric field E is radially outward. लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी कि this is spherically symmetric. What does it mean that electric field is spherically symmetric? That means if from a point you take, this is charged point, and you take 1.2 centimeter from here, तो आप यदि 2 सेंटीमीटर का एक स्फीयर बना दें इसके आसपास, तो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। बिकॉज ये भी आर सेम, आर सबका सेम रहेगा ना, चार्ज वैल्यू सेम है, तो दैट विल बी सेम। थर्ड पॉइंट इज इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक। एंड फोर्थ पॉइंट इज गॉसियन सरफेस, दैट एट पॉइंट पी let us we are to find the electric field using Gauss theorem. Then at point P we are to draw, imagine one Gaussian surface which will be of the shape of a sphere in this case, right? तो ये चार बातें सबसे पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन में, जब भी क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो वहां पे लिख देंगे ये, राइट? ये चार बातें कि इट इज चार्ज्ड शेल whose radius is R. This is radius. Second point is sigma is surface charge density, which is Q by A. Third point, electric field, which is radially outward and spherical symmetric. And fourth point is that we have to draw a Gaussian surface to the point where electric field is to be calculated. So now let us take the first case, case number 1. Case number 1 is when point P is outside the shell. Point P is outside the shell. Now it is outside. इसके बाहर है, कहीं पर बाहर है ये। और कितना दूर है? Such that OP is equal to R. That you are considering that from the center of this shell, your point P, where you are to find electric field, is at a distance R. तो क्या करना है? तो consider or draw the Gaussian surface passing through P. You must write here that therefore we'll draw a Gaussian surface which is passing through point P, and this Gaussian surface is also in the shape of a sphere, you can see. और एक बात जरूर ध्यान से देखें, यहाँ पर R यहां तक है और कैपिटल R तो रेडियस था शेल का, वो छोटा रह गया, तो R छोटा है and this is quite large, so we can write that R is more than R. And what is the direction of the electric field at this point? This is along this towards positive x-axis, and the area also point in same direction. That means यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो here what is charge? Q कितना होगा जी? तो Q will be equal to, yes, अभी डेफिनेशन लिखा था आपने, सिग्मा कितना होता है? Q by A. चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय एरिया, तो व्हाट इज Q? सिग्मा इनटू A.
sigma into A. And what is A here? A is surface area of this sphere. This is 4 pi r square. Equation 1. Let me write here. Q is equal to, मैं रफ में लिख रहा हूँ इसको ताकि बाद में जब बोर्ड को मिटाएंगे तो हमारा ये काम एकदम से आ जाए. Into sigma. Okay. अगली बात. Now let us find इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए पहले हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा. फ्लक्स आएगा दो तरीके से, एक बाय डेफिनेशन और एक यूजिंग गॉस थ्योरम. तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हाट इज फ्लक्स? फाई ई इज इक्वल टू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, because otherwise it is E ds, E vector dot ds vector, you know it well, this is flux. For a closed Gaussian surface which is this dotted sphere, this is phi E is E ds, and what it becomes here, E is outside and ds and its integration over the closed surface is sphere. तो outer sphere है ये, inner नहीं है, ये charged sphere जहाँ charges हैं. और गॉसियन सरफेस तो यहां पर है, पॉइंट पी से पास करता हुआ, तो यहां स्मॉल आर आएगा उसका रेडियस. तो व्हाट इज सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज आवर फाई ई. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, राइट? एंड नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स? फ्रॉम गॉस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स? यस, यू नो इट वेल. दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इसका यूज बाद में करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 थी ना, इसको बाद में देखेंगे. अभी इन दोनों को देखिए, 2 और 3 को. तो फ्लक्स के 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं. सो लेट अस राइट द फाइनल इक्वेशन इक्वेटिंग 2 and 3. So 2 is equal to 3. What we get? This is E into 4 pi small r square is equal to, yes, this is Q by epsilon naught. So E comes out to be 1 by, इसको लाइए इधर, 1 by 4 pi यहाँ अटैच करिए epsilon naught, and this is Q by r square. So this is our equation number 4, which tells you that what is electric field at this point. And you notice clearly, this is the same formula as you have obtained where to find the electric field at a point due to point charge. तो पॉइंट चार्ज के कारण भी यही फॉर्मूला था. दैट मीन्स व्हेन अ स्फेरिकल शेल इज देयर एंड वी आर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एक्सटीरियर टू इट, देन द स्फेरिकल शेल बिहेव्स एज इफ एंटायर चार्ज इज एट इट्स सेंटर. चार्ज यहां की बजाय यहां बिहेव हुआ, यहां शो हुआ, तभी तो डिस्टेंस आर हुआ ना. ये देखिए, है ना. दिस इज सेम फॉर्मूला फॉर द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज. एनी हाउ, तो इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिख पाएंगे? सो इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, and this is Q by r square. This is magnitude, and write R unit vector, where R unit vector points radially outward. This is vector form. Okay, and next is its graph. Graph is same as that of the point charge. How the graph behaves? This is E and this is R. So this is like this. This is hyperbolic variation, but only outside. अभी हमने ऊपर या अंदर बात नहीं किया है. Okay. और also एक स्पेशल केस लेते हैं. तो स्पेशल केस लेते हैं ये कि let us write E in terms of sigma. तो क्या बन जाएगा? तो what is E? E is equal to same equation 1 by 4 pi epsilon naught, और Q की जगह हम यहां से वैल्यू पुट कर रहे हैं using equation number 1. So we are using equation number 1 here. Instead of Q, I must write 4 pi r square sigma divided by this is small r square. So I have just replaced the value of Q with this value. Is it clear? And now 4 pi gets cancelled. So electric field comes out to be, yes, this is sigma is here, note the sigma and by epsilon naught. I'm writing because you know ये पहले भी हमने कर चुके हैं इसको. 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी जिनका सिग्मा और माइनस सिग्मा दोनों का चार्ज डेंसिटी था. उनके बीच के पार्ट में यही तो फील्ड था. इनटू दिस मच
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना रह गया, ऊपर रह गया आर स्क्वायर और नीचे आ गया स्मॉल आर स्क्वायर. सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल और डूइंग सम एडवांस्ड न्यूमेरिकल्स. So this is all regarding this. This is how do we find the electric field due to a point which is outside the spherical shell. अब हम करेंगे केस नंबर 2. केस नंबर 2, यदि आपको केस नंबर 1 समझ आ गया है तो केस नंबर 2 तो आप अचानक एकदम से, है ना, जिसे कहते हैं कि चुटकियों में कर डालेंगे आप तुरंत. लेट अस सी आप कितना फास्ट चलते हैं. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद केस नंबर 2. केस नंबर 2 में when point P is on the shell. Point P is on the shell. What does it mean? Point P is here. Now point P is here, तो Gaussian surface यहीं कहीं आएगा. That means small r and capital R both are equal. Small r is equal to capital R. तो वही बातें लिखते हैं पिछली वाली. So what is Q? चार्ज कितना हुआ? सिग्मा टाइम्स A. ए मीन सरफेस एरिया किसका, जहां चार्ज है. चार्ज कहां पे है, स्फीयर पे. ये हमारी इक्वेशन नंबर, वहां कितने गई थी, 4 5 गई थी वहां पे शायद, 1 2 3 4 5 यस. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई. राइट, ओके. ये चार्ज निकल गया. अब फ्लक्स का पहले लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन. क्या हो गया फ्लक्स का फर्स्ट इक्वेशन? दिस इज फ्लक्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट, फ्रॉम डेफिनेशन. तो कितना हुआ जी, ये क्या फॉर्मूला था, E इंटू सरफेस एरिया. किसका, गॉसियन सरफेस का, क्योंकि फ्लक्स तो किसको करे इंटरसेप्ट, गॉसियन सरफेस को, और वो भी शेल के ऊपर ही है. तो ये भी कितना बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर. राइट, एंड यूजिंग गॉस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन 7, इक्वेशन 8. लेट अस इक्वेट दीस टू, क्योंकि दोनों इक्वेशन फ्लक्स की हैं. तो 7 इज इक्वल टू 8. व्हाट डू वी गेट, वी गेट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर is equal to Q by epsilon naught. Easy. So what is E? E is equal to, उसको ले जाओ नीचे, तो 1 by, this is 4 pi, attach it with epsilon naught, right? And this is Q by R square. So here, if you compare with the case 1, small r था वहां पर, क्योंकि वो distance का small r था, यहाँ ये capital R हो गया. Otherwise this formula also same as the entire this shell, its charge is at its center. Again वही फॉर्मूला आ गया कि इस पॉइंट पे है तब भी चार्ज सेंटर पे है, तो उसका डिस्टेंस ले लेना है हमने. और इसका स्पेशल केस करते हैं, वही जो हमने किया था दोनों को वैल्यू पुट करके. तो ऑल्सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ Q, कितना था, Q वाज सिग्मा इंटू ए ना, तो सिग्मा इंटू ए व्हाट वाज ए, 4 पाई आर स्क्वायर. लेट अस यूज दिस नाउ. तो E comes out to be 1 by 4 pi epsilon naught, and this is Q. Instead of Q you must write sigma into 4 pi r square, and divided by this is r square. R square cancels, 4 pi also cancels, and what you see, E is equal to sigma by epsilon naught. So this is the same formula as for the electric field between two similarly charged plates having the same charge densities. So this was case number 2. Now let us come to case number 3. Case number 3 is very interesting. Case 3 में क्या करते हैं कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कहां पे आएगा, उस पॉइंट पे आएगा जहां पे P पॉइंट होगा. तो P पॉइंट तो चला गया अंदर. Case number 3, when point P lies inside the shell. Point P lies inside the shell. This is O and this is P. So obviously Gaussian surface is this. And here Gaussian surface does not enclose any charge. Charge तो बाहर रह गया. इसके अंदर तो चार्ज आया ही नहीं, चार्ज है ही नहीं. Right? तो here charge enclosed by Gaussian surface Q कितना हो गया, 0 हो गया. यहाँ पर चार्ज है ही नहीं. तो बात करते हैं उनकी दोनों थ्योरम्स की. व्हाट इज, जो दोनों हमने फ्लक्स की इक्वेशंस करनी है. व्हाट इज फ्लक्स, E into, let its radius is R, small r is here, so obviously here R is less than capital R. Right? So what is flux? Phi E is equal to E into area. Now what is area? Area of the sphere, Gaussian surface. This is 4 pi r square. And from Gauss theorem,
What is flux? Flux is equal to Q by epsilon naught. What is Q? Charge enclosed. How much charge enclosed? 0. So flux is 0. And if you equate these two equations, so E into 4 pi r square, give the numbers of the equation accordingly, and this is 0. So that means E will be equal to 0. That means no electric field is there at a point within this spherical shell. तो इन तीनों केसेस के लिए अब हम एक कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ कैसा रहेगा फॉर अ स्फेरिकल शेल. तो इसके लिए ग्राफ का देखना ध्यान से जरा. दिस इज E एंड दिस इज R. दिस इज हाउ E वेरीज विद R. आप क्या देख रहे हैं कि पहले आप शुरू हुए यहां से, और यहां तो फील्ड 0 था, अभी निकाला थर्ड केस में, और यहां तक ये फील्ड 0 ही रहा. यानी जब तक डिस्टेंस R नहीं हो गया, तब तक तो ये रहा हमारा फील्ड, एंड दिस फील्ड इज 0, राइट. और जैसे ही R पर पहुंचे तो व्हाट वाज फील्ड? इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर. दैट मीन एकदम से ज्यादा हो गया और यहां पहुंच गया ये, राइट. अब इसका क्या हुआ? इसके बाहर वाले पॉइंट्स पे दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. R बढ़ना शुरू हो गया, और जितना R बढ़ रहा है ना, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. अभी हमने पहले बात कही भी थी ये. तो जितना R बढ़ रहा है उतना फील्ड कम हो रहा है, यानी जितना दूर जाते जा रहे हैं उतना फील्ड कम हो रहा है. तो दिस इज द चेंज. फील्ड कम होगा और इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके फील्ड 0 भी हो सकता है, हो जाएगा. तो दिस इज द ग्राफ. दिस इज विद इन, दिस इज एट R. तो एट R ये हुआ फील्ड का वैल्यू. दिस इज फील्ड एट सरफेस, फील्ड एट पॉइंट R. तो R के करस्पॉन्डिंग ये फील्ड हुआ, और इसके बाद वाला दिस इज आउटसाइड द शेल, ये हुआ फील्ड. तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द आउटसाइड द शेल. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू स्फेरिकल शेल. So physics की बात नंबर 2, let us find the electric field intensity at a point due to an insulating charge sphere. Now this is our insulating sphere which is charged sphere and it's solid also. Obviously इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्फेयर है, प्लास्टिक का है, किसी और चीज का है, और इंसुलेटिंग मटेरियल इसलिए कि जहां पर चार्ज रखा है वहीं पे रहे, वो फ्लो ना करे. तो बड़ा स्फेयर है तो चार्ज ज्यादा होगा, स्फेयर थोड़ा कम कर देंगे चार्ज कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि कुछ पार्टिकल छूट गया उसके, और कम किया तो करते करते सेंटर में आ गए तो वहां पे तो 0 ही हो गया ना, क्योंकि स्फीयर तो बचा ही नहीं वहां पे. तो दैट मीन्स इंसुलेटिंग स्फीयर पे चार्ज थ्रू आउट पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है. तो 3 केस लेंगे जैसे पिछले आर्टिकल में किए थे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड विद इन द सरफेस. व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? लेट अस ट्राई टू सी. तो सबसे पहले तो लिख लेंगे पहला पॉइंट जिसे पहले किया था, कंसीडर एन इंसुलेटिंग स्फीयर which is charged and it is having center O and radius R. सेकेंड पॉइंट पे लिखते हैं हम चार्ज डेंसिटी की बात करते थे. तो लेट हेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वहां पे सरफेस चार्ज था, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज की, बिकॉज चार्ज इज स्प्रेड ओवर द होल वॉल्यूम. दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट, डेंसिटी हेयर. एंड कितना होता है? दिस इज Q बाय V, चार्ज ओवर वॉल्यूम. हाँ, यदि वॉल्यूम चेंज करेगा तो चार्ज को भी चेंज करना है, ये बात मन में रखी जाए. ओके. तीसरी बात लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रेडिली आउटवर्ड एंड इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. एंड चौथी बात, इफ वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एंड गॉसियन सरफेस मस्ट बी पास्ड थ्रू दैट पॉइंट, राइट. तो लीजिए 3 केसेस. तो केस नंबर 1, केस 1 इज व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड. So P is outside this shell at a distance R. इससे पहले के बिल्कुल वैसा ही. तो ये पॉइंट P है, तो we will consider a Gaussian surface which is passing through point P, right? And its distance is R. So obviously at this point flux pointing in this direction, field also here, so flux is maximum, we know it well. Okay, so what is this flux? So flux will be equal to phi E is E into surface area, because
उस बाहर वाले स्फेयर का सरफेस एरिया लेंगे हम, तो व्हाट इज दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का रेडियस r है। यूजिंग गॉस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स, q बाय एप्सिलॉन नॉट, यू विल राइट हियर, ये बाय डेफिनेशन है, ये गॉस थ्योरम से है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो व्हाट E बिकम्स, अब देख लीजिए, दैट विल बिकम 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी q बाय r square. So this equation is same as the previous case and this is just like a point charge. तो यहाँ भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है कि सारे के सारे स्फीयर का चार्ज यहाँ रख दिया सेंटर के ऊपर, ऐसा बिहेव करता है। ये फर्स्ट केस हो गया ये, और इसको वेक्टर फॉर्म में तो वही रेडियली आउटवर्ड करेगा, तो यू कैन राइट। लेट अस गो टू केस नंबर 2. इन द केस नंबर 2 द पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर. आई थिंक यहां भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल r विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R. And in the case number 2, when point P lies on the sphere, then Gaussian surface will pass through this point. तो जैसा शेल में किया बिल्कुल वैसा ही E will come out to be 1 by 4 pi epsilon naught and this is Q by capital R square, because here point is here and Gaussian surface has radius capital R, not small r, because the small r is equal to capital R. और केस नंबर 3 थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है, तो वो भी हम कर लेते हैं. सो नाउ लेट अस कम टू केस नंबर 3. केस नंबर 3 is that when point P it lies within the sphere. So this is the sphere, right, having center O, and the point P lies within the sphere. This is point P, and this point P is at a distance r from the center. So we must consider a Gaussian surface which passes through point P. This is all. So let us draw the through diagram. ठीक कर लीजिएगा. Let us start. Okay. So we must write here that already we know what is volume charge density. This is charge of the total sphere by volume of the total sphere overall. तो ये तो हमारा already formula stand कर रहा था. Now we are to find using Gauss theorem what is flux. The flux is equal to, this is E into area. किसका एरिया, फ्लक्स कहां से क्रॉस कर रहा है, गॉसियन सरफेस से, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड फ्रॉम गॉस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. पर ध्यान रहे वो Q क्या होता है, ये दिस Q इज नॉट द Q टोटल Q इज अ चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस स्फीयर. इस स्फीयर के इनर पार्ट में कितना चार्ज है, तो उसको Q डैश या Q1 कहना पड़ेगा. वो चार्ज बाहर वाले चार्ज से डिफरेंट है. बाहर मान लो चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, तो इसके अंदर हो सकता है कि 6 माइक्रोकूलम चार्ज ही है अंदर, इसलिए यहां पर Q डैश आएगा. ओके, तो इनको इक्वेट करते हैं दोनों को. तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट E इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज Q डैश बाय आर स्क्वायर. वैसे तो इक्वेशन ये आया है, लेकिन अभी हम इस इक्वेशन को और ढंग से लिख सकते हैं. So what we can write? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Now what is Q? Q का होता है फॉर्मूला this volume charge density into volume. What is volume charge density को यदि वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें तो we get charge, right? तो ये Q डैश क्या बन जाएगा? चलो बाकी तो सारा as it is रहा, ये भी as it is लिख दिया, ये भी लिख दिया, लेकिन what is Q डैश? What is charge enclosed? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, एनक्लोज्ड वॉल्यूम. दिस इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब. कुछ कटता है, यस 4 पाई कट जाता है, 4 पाई कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, दिस इज रो इज हियर इज आर क्यूब, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज आर स्क्वायर. सो अवर फॉर्मूला बिकम्स E is equal to, yes, this is R रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और 3 साथ में रहा एक, ये 3, दिस इज 3 आल्सो. सो E इज इक्वल टू R रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. एंड आप यदि इसको इस टर्म में लिखना चाहें तो पुट द वैल्यू, तो वो आंसर भी वैसे निकल जाएगा, इफ यू वांट टू पुट इन दैट टर्म्स. दिस इज ऑल रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर व्हिच इज इंसुलेटिंग. सो आज हमने फिजिक्स की 2 बातें की. सबसे पहले हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, and then insulating sphere, taking 3 cases, point P outside, on the surface, and within that surface. So I hope this is clear. If any doubt is there, doubts are welcome. So thanks for watching.